Hello students, in today's session we are going to solve exercise problem number 5 common textbook. So let us begin. Greenlist campus, Dr. Physical campus. In today's session we are going to cover common textbook page number 58, exercise number 5. So here the question which we already discussed in the previous session is on your screen. And we are going to solve this problem today. Two things which I feel should be explained once again, that one is implied adjustment. Here's partner Suchitra's loan 6,150 and adjust number 5 and 6. So let us begin with the adjust number 5 and 6. Adjust number 5 says the write off rupees 2,000 for bad dates and maintain RDD at a rate of 3% on datas. So we have a sundry datas figures 47,500 and adjust number 6 is related with this adjust number 5. Bill receivable include dishonor of bill of rupees 4,000, as we discussed this thing already in the previous session. So whatever amount we are receiving from the datas, in that amount a bill of rupees 4,000 is dishonored. So again we have to add this amount, add dishonor of bill, dishonor of bill 4,000 to make a total. This is 51,500. And now we have to give the effect of this adjust number 5. The adjust number 5 says the write off rupees 2,000. So we have to minus this, less bad dates. How much? 2,000 saying. The total will be 49,500 after deduction of this 2,000. Now again adjustment says that bad dates and maintain RDD at a rate of 3% on datas. So we have to calculate 3% on sundry datas. 3% RDD. $49,500 multiplied by 3 divided by 100. Which come to rupees 1,485 rupees. I will just copy it here. And again minus it from the 49,500. 48,085 rupees will be the outer column total of the data. How much? 48,000. Clear? Once again, sundry data is given in the trial balance is 48,000. The one of the bill which is dishonored, the amount which must be received, but unfortunately that data is not able to pay and check is become dishonor. As per the adjustment 6, bill receivable include dishonor of bill. So we have to add that amount. This is addition. After that total will be 51,500. Then adjustment number 5 says the write of rupees 5,000, 2,000 for bad dates. So we have deducted this 2,000 minus this 2,000. So we arrive at a 49,000 figure, 49,500. Then again further says maintain RDD at a rate of 3% on datas. So here 3% we have calculated 49,500 multiplied by 3 upon 100 to come to rupees 1,485. After deducting this, we have to show this much amount on the balance sheet outer column, where we have to show balance sheet outer asset side outer column. How much? This much amount. And whatever we had deducted, this one and this one 2,000, we have to show it on the P&L account. ये कहाँ show करेंगे हम? P
एंड एल अकाउंट, ये शो करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक 2000 जाएगा। I will make it red so you can easily identify that. Again, P&L account with side, debit side, debit side. Again, this profit and loss account, debit side. अभी जो 4000 रुपीज एडजस्टमेंट नंबर 6 के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर इसमें ऐड किया है, तो इसको मैं ग्रीन करता हूँ। ये एक इफेक्ट होगा उसका यहाँ पर, और दूसरा ये बिल रिसीवेबल में, बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल, तो बिल रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा। तो बिल रिसीवेबल का अमाउंट हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कितना है। बिल रिसीवेबल है अमाउंट 22,000, तो एक बिल इसमें से 4,000 का नहीं मिला। सो सेकंड इफेक्ट, एक इफेक्ट तो क्या किया हमने, यहाँ ले लिया है ग्रीन वाला, देखिए ये ले लिया बिल रिसीवेबल डिसऑनर डेटास में ऐड। इसके टू इफेक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट इफेक्ट, ऐड into datars, that we have done already. Second effect, less from bill receivable on balance sheet asset side 4,000। ये इसके दो इफेक्ट हो गए, एडजस्ट नंबर 6 and 5। It is dependent adjustment. So thing which I want to tell you that first we have to add this 4,000 into datas, then calculate this bad dates and 3% RDD. Okay. Now, last thing which I want to explain here, in the trial balance given, where it is given here, partner Suchita's loan 6,150 rupees, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है पार्टनर सुचिता लोन कितना है 6,150 रुपीज। ये है, इसे कहते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, इम्प्लाइड और हिडन एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं इसको, इट इज कॉल्ड इम्प्लाइड और हिडन एडजस्टमेंट। सो वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट because we have taken loan and we have to pay the interest। 6150 अमाउंट है। अभी 6150 का हमको अब कितना परसेंट होना है वो नहीं दिया गया है। जब पार्टनरशिप डीड में ये आपको नहीं कहा गया है, तो दैट टाइम वी हैव टू कैलकुलेट एट अ रेट ऑफ 6% पर annum। वी हैव टू कैलकुलेट एट अ रेट ऑफ 6% पर annum, 6% पर annum। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 6% पर annum multiplied by 6 divided by 100, so which come to rupees 369। so this much interest we have to add while recording loan on balance sheet liability side। उस लाइबिलिटी के अमाउंट में ये भी ऐड हो जाएगा, कितना 369। तो आउटर कॉलम में ये जो है अमाउंट 369 प्लस 6150 टोटल विल बी, यहाँ पर ये अमाउंट आपको लाइब्रेरी साइड में शो करना पड़ेगा। कितना, दिस मच अमाउंट वी हैव टू शो। फर्स्ट द अमाउंट ऑफ लोन, देन ऐड दिस इंटरेस्ट, ये प्लस ये कैसे आए 369 वी हैव एडेड इन द 6,150 रुपीज। तो आपको लाइब्रेरी साइड आएगा। और ये जो सेकेंड इफेक्ट है इसका रुपीज 369 विल बी रिकॉर्डेड ऑन P&L account debit side because it's an expenditure of the business. So one will be recorded on the liability side and second will be recorded in P&L account debit side। ठीक है, इस एडजस्टमेंट को कहा जाता है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, जो आपके ट्रायल बैलेंस पे दी हुई। जनरली जहां परसेंटेज या आपको डेट दी गई, तो दैट टाइम वी हैव टू कैलकुलेट एंड शो टू इफेक्ट्स likewise। Now let us start solution for this problem। चलिए, आपके स्क्रीन पर अब इसको दोनों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा।
Before solving the problem, the simple step that whatever you can say the adjustment, जहां जहां एडजस्टमेंट है हम उसको टिक मार्क कर लेते हैं. एज एन एग्जांपल में हमारे पास स्टॉक है, फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट है, मोटिव पावर है, डिप्रिसिएशन है और बैड डेट्स है. तो एक बिल्डिंग पे आ जाएगा आपका, मोटिव पावर पे आ जाएगा और बिल रिसीवेबल पे. तो जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो हम इसको इनर कॉलम में ट्रांसफर करेंगे. ठीक है, चलिए लेते हैं फर्स्ट आइटम, परचेजेस एंड सेल्स. ओपनिंग स्टॉक है टू ओपनिंग स्टॉक छोड़ देते, जब आएगा देखेंगे. ऐड परचेजेस, परचेज 65,000 है और सेल्स है हमारे पास 1,85,500. Just arrange the screen. Buy sales account 1,85,500. Then work manager salary, work manager salary. How much it is? 2,300, outer column. Then capital of Suchita and Gayatri 75,000, 40,000. पार्टनर का कौन सा मेथड है ये नहीं कहा गया. जब नहीं कहा जाता है तो हम कंसिडर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली. हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये यहाँ पार्टनर का नाम है चित्रा, सुचिता एंड गायत्री. यहाँ आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मच? 75,000 फॉर फर्स्ट पार्टनर एंड 40,000 फॉर द सेकंड पार्टनर. ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है आपका 18,700. नाउ टेक अ टोटल ऑन द आउटर कॉलम 83,000. Debtors and creditor 47,500. Debtor will be recorded on the बैलेंस शीट एसेट साइड. ये बैलेंस शीट आपका एसेट साइड. यहाँ लेते हैं सन्ड्री डेटार्स, इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है इसके ऊपर. कितना है डेटार्स का अमाउंट है 47,500. क्रेडिटार्स है लाइब्रेरी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा. होम, यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दोनों पार्टनर्स का नाम ले लेंगे, सुचिता, गायत्री. एक इफेक्ट देते हैं, फिर बाद में लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटार्स 35,000. क्रेडिटार्स लिखा है तो क्रेडिटार्स भी अप्रोप्रिएट रहेगा. सन्ड्री क्रेडिटार्स नॉट नेसेसरी. क्रेडिटार्स. वेजेस एंड सैलरी, तो पहला वर्ड वेजेस आ गया तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में. ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है. टू वेजेस अकाउंट, वेजेस एंड सैलरी कंप्लीट यू हैव टू राइट 4,000. एडजस्टमेंट नहीं है इसको आउटर कॉलम में ले लेंगे. बिल रिसीवेबल के ऊपर एडजस्टमेंट है 22,000, तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे इनर कॉलम में बैलेंस शीट के एसेट साइड. बिल्स रिसीवेबल 22,000 इनर कॉलम में है. एडजस्ट नंबर 6 जस्ट वी हैव सीन. बिल्स पेबल है 27,300. बिल्स पेबल अकाउंट 23,700, 27,300. Discount will be recorded on the profit loss account credit side. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ इसके क्रेडिट में आ जाते हैं. बाय डिस्काउंट अकाउंट हाउ मच 400. ये ऊपर का फैक्टर कैलकुलेशन की वजह से आ रहा है यहाँ पर, इसको हम माइनस कर लेते हैं. चलिए 400. मोटिव पावर है 1,350 रुपीज. ये आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में.
टू मोटिव पावर, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, आई विल राइट इट इनर कॉलम। देन कस्टम ड्यूटी, एक लाइन छोड़ देते हैं, इंसर्ट रो टू कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का अमाउंट है हमारे पास 1500, आउटर कॉलम। इंटरेस्ट है, रिसीव हो रहा है, क्रेडिट साइड लिखा है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे P&L अकाउंट में, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1300। अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है, तो यहाँ ले लेते हैं टू अनप्रोडक्टिव वेजेस 3000। प्रोडक्टिव आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, अनप्रोडक्टिव होता है प्रॉफिट लॉस में। ऑडिट फीस 2500, टू ऑडिट फी 2500, टू रेंट अकाउंट 1800, टू कन्वेंस अकाउंट 2000, कन्वेंस अकाउंट 2000। गुडविल है आपका asset, goodwill, copyright and building will be recorded in the balance sheet asset side. Goodwill 25,000, here's the balance sheet. Goodwill is a asset of the business, reputation of the business, 25,000 outer column because no adjustment. Then copyright, again it's an asset of the business, 20,000 outer column directly. Then building, it is having adjustment, so I will record it in the inner column, building account. कितना है 88,000, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन दिया गया है, हमने एडजस्टमेंट में देखा है। देन पार्टनर्स सुचिता's loan, so loan will be recorded on the liability side, so we have a liability side here on screen. So यहाँ लिखूंगा मैं सुचिता's loan account, इनर कॉलम में आ जाएगा ये 6150। we have calculated here the amount, कितना आ रहा है 369। ये ऐड करेंगे इसमें, ऐड इंटरेस्ट 369, ऑर्डर कॉलम में इसका टोटल ले लेंगे। टोटल हमने वहां देखा था 6590 आ रहा है। ये एक इफेक्ट, इसका सेकंड इफेक्ट दे देंगे। इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, लॉस ऑफ द बिजनेस, एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना लिखा हमने 369। ओके, चलिए इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद है हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 40,000, कैश एट बैंक है 26,000। सो इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द asset side. Investment 40,000 outer column because it is having no adjustment. Cash at bank 26,000. So we have transferred each and every item from the trial balance to respective account or balance sheet. The adjustments to effect now, which we studied in the previous lecture. Stock on 31st March 2019 19,700, तो एक आ जाता है बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 19,700, और ये चला जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट इसके क्रेडिट में आएगा, और यहाँ लिख देंगे हम बाय क्लोजिंग स्टॉक। टू बी फैक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन in the classroom in 145 minutes, so generally it takes 2 lectures. So we have an advantage of the screen sharing, so we have a question in front of us and answer we are solving simultaneously. Second adjustment, goods costing rupees 3,000 distributed is free sample, तो ये भी आ जाएगा स्टॉक से रिलेटेड बाय फ्री सैंपल अकाउंट। कितना है 3,000, एक इफेक्ट। The previous session we have seen the 2 effects. यहाँ आ जाएंगे उसका दूसरा इफेक्ट, टू एडवर्टीजमेंट, क्या लिखा जाता है इसको एडवर्टीजमेंट 3,000। इसके 2 इफेक्ट हो गए। मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड फॉर द डिपॉजिट मोटर पावर मीटर। तो ये जो मोटिव पावर हमने लिखा है 500, इसमें इंक्लूड है जो कि yesterday we have seen
द कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू, ये है रेवेन्यू, और इसमें जो पावर मीटर है ये कैपिटल नेचर का, तो आ गया, तो इसमें माइनस कर लेंगे। तो फर्स्ट वी विल माइनस इज मोटी पावर 500, ये लिखा है हमने ट्रेडिंग अकाउंट में, मोटी पावर लेस पावर मीटर METER कितना है 500, इसको माइनस करके लिखेंगे यहाँ से, माइनस दिस 13,000। अब ये जो 5,500 रुपये माइनस किया है, इसको रिकॉर्ड करेंगे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहाँ पर? ये आपका बैलेंस शीट है, इसका एसेट साइड में, यहाँ लिखेंगे पावर मीटर आउटर कॉलम में 500। दो इफेक्ट हो गए। डिप्रिशिएट बिल्डिंग एट रेट ऑफ 5%, ये बिल्डिंग है, लेस 5% डिप्रिसिएशन, 5% डिप्रिसिएशन इक्वल्स टू प्लस multiplied by 5 upon 100, which come to rupees 4,400 equals to plus minus this much. Outer column total will be 83,600. Depreciation amount we have to record it on the profit and loss account. तो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ लिखता हूं मैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,400 आउटर कॉलम में। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट राइट ऑफ, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेशन देखा जस्ट नाउ, ये आपका कैलकुलेशन जो बताया है प्रॉफिट लॉस में, ये लिखना है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, दैट वी अंडरस्टूड। तो एक लेना है बैड डेट्स 2000 और एक लेना है 1485, क्या है ये RDD। चलिए आते हैं यहाँ पर एक्सेल शीट में, पहला है कोई बैड डेट नहीं है, यहाँ ले लेते चलिए, टू बैड डेट्स, कितना अमाउंट है 2000, एड 3% RDD 1485, we have already calculated it, so outer column this much। अब ये जो है ये डेटा इसमें से हमको माइनस करना है, बट आफ्टर एडिंग दिस 4,000, look at here 4,000, first we have to add on the data, so first we'll add dishonorable बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट एसेट साइड, सन्ड्री डेटर ऐड डिसऑनरेबल कितना 4,000, यहाँ आ जाएगा इसका सम। अब क्या करना है, लेस करना है, यहाँ मैं 2 रो इंसर्ट कर देता हूँ, और इंसर्ट डायर रो लेस बैड डेट्स, कितना कैलकुलेट कर रखा है हमने 2000, जिसके बाद आता है ये अमाउंट 49,500, राइट है, लेस 3% RDD, तो ये भी हमारे पास कैलकुलेट है 1485, आउटर कॉलम टोटल विल बी 48,015, 48,015 here is written, okay। Now last adjustment, bill receivable included dishonor of bill, so we have given the bill receivable dishonor one effect here 4,000. The second effect will be recorded on the balance sheet asset side, here add dishonor of bill, यहां से लेस कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर लेस करना पड़ेगा, वहां ऐड हुआ तो यहाँ से लेस होगा, डेटास में ऐड होगा, यहाँ लेस होगा, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, लेस वाले पार्ट को, इसको क्या करेंगे हम यहाँ से लेस करेंगे, तो 22 प्लस 26,000, राइट है। सो वी हैव गिवन adjustment to effect. Now check, close down this, we don't need now this, I will make the Excel sheet larger so you can see each and everything on your screen. We have to close the first account, तो यहाँ का जो प्रॉफिट है बराबर है क्या 1,15,850 नहीं आ रहा है, we have to check out it, बराबर है
Gross profit should be 1,15,000. परचेजेस इसमें भी ऐड होने के बाद आता है the total comes to rupees 1,04,500. 2,08,200 minus this much total. एक 4,500. One lakh 3,000. How much it is showing? 1,15,000. Why? What else remain? सभी आइटम ट्रांसफर हो चुके हैं यहाँ से. परचेज 65,000. कितना लिया मैंने? 65,000. ओपनिंग स्टॉक, मैनेजर सैलरी, वेजेस, इनर कस्टम ड्यूटी एंड C7 से टोटल बराबर है माइनस. चलिए हमारा कैलकुलेशन सही हो सकता है. यहाँ से आगे बढ़ते हैं. इसको कर देते हैं वाइट. ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट. एड दिस ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड, मेक अ टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड. यहाँ तक के करेक्ट है. और यहाँ का हम बीच में से ये वाला है सेल, यहाँ तक ले लेते हैं. 84,6. नेट प्रॉफिट कितना दे रहा है? 97,000. देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है. 84,6. पार्टनर 1 एंड पार्टनर 2. क्या नाम है पार्टनर का? सुचिता एंड गायत्री. रेशो नहीं दिया गया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम. यहाँ पर रेशो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, तो ये रेशो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है. चलिए, टू सुचिता's अकाउंट, टू और क्या नाम है इसका दूसरे पार्टनर अपना? गायत्री. इक्वल्स टू प्लस 3:2. 3/5, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5. तो एक पार्टनर का ये हो जाएगा इक्वल्स टू प्लस मल्टीप्लाइड बाय 2/5. तो दूसरे पार्टनर का हो जाएगा इतना. इट इज करेक्ट. ट्रांसफर दिस मच अमाउंट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. पहले पार्टनर का एंड सेकेंड पार्टनर. Close this account. We do not have any subtraction, driving, etc. to balance carried down. यही बैलेंस आ जाएगा इसमें. अभी चला जाएगा पार्टनर्स के बैलेंस शीट को. After transferring, you have a figure capital account sum these two items. Now make a total of balance sheet. We have a difference of rupees
equals to plus 288,815 minus 268,665 20,150 रुपीज डिफरेंस है, तो इसको चेक करेंगे हम कहाँ पर आया, and I will